Welcome everyone. Sabko, namaskar, good evening, sat sri akal, and salam alaikum. Salam alaikum. Hanji. So today we have gathered here to listen to our two young ladies. Actually, one is really young, Hania, our dear Hania Irfan. So Thank welcome, you. Hania. And Thank you, we all everyone. know her so well, but still I will introduce her uh, she is a member of Malton Women Council who has successfully received funding in January 2021 for Care Hangers thrift store project for rising youth under Malton. Mm, As we know, as she has written on the like she shows her cooking, always cooking on Facebook, and we always see her projects. And Hania travels. She interviews many people, and she's doing lots of things. She is an activist, and she is a cook. So, today she is going to tell us how to write a will, right? That's what you're going to tell, Yes, yes? I'll Yes. try to do that. Thank you, everyone. Thank you for the introduction. So my name is Hania, and I'm a member of Malton Council as well. I received a funding in January 2021 at the beginning of this year. And today I'm here to give you all the tips and tricks where you and your kids or anyone you know can apply for this grant. And I'm just going to get started. Yes, yes. You're most welcome. Thank you. Okay, so this is Rising Youth Ideation and Grant Writing Workshop. And I'll just get this to start. How do I get the slide? Here, hold on. Okay, so this is Ideation and Grant Writing Workshop. So this is a kind of funding which different organizations and individuals can apply. I'm talking from an individual perspective because that's the way how I applied for my first grant. So about Rising Youth. Taking it global, Rising Youth is looking for young people who are inspired by ideas and ready to take action through youth-led and community service grants. To do this, Rising Youth empowers young people, helps put ideas into action, provides ongoing project support, and amplifies the stories of youth. So you can see it all kind of connects. It's about youth making a difference. If you have any questions, feel free to ask in the middle. We will. Okay. So my story, Rising Youth Care Hangers Thrift Store Project. So I had this idea of a social enterprise thrift store when I was in the Rise Asset program in 2019, which is a UTM entrepreneur program. Then in 2020, I began looking for funding for my idea. Then I found Rising Youth, where I had applied for my grant. And that's where I launched in January 2021. I launched under Care Hangers Thrift Store under Malton Council as my mentoring organization. And the impact of this was to help the Malton community to use goods and products for those in need. And Ali bolo. I will. Thank you. So what do you think of our projects? So the few resources on projects could be on Whose Land, using the Rising Youth self-reflection guide, which you could find on the website. And there's a YouTube link that's also available. So an ideation. So a few ways to think about like what you want to do is that a few prompts are like, I wish we had blank here. I saw this in another community. I loved it, but what could you make it to go on the media? And someone should start something, and one of your friends is talking about this. That's a few prompts. Another way to look at ideas is, what does this impact look like? Who are the participants? Hello, Gulnaz. How are you? And Yes. I think we should mute ourselves so that she can speak. Yes, that would be a good idea.
So I was saying like who could participate in this if they would, and what are the barriers that might be addressed in here that we could make it accessible. That is some of the things that are mentioned in there. So I think everyone sees how ideation and ideas come up, because when you're applying for a grant, one thing I got to know myself is that you need an idea first before you apply for a grant. If the grant comes later, the idea comes first. Now, next is problem framing. So problem framing, so some of the ideas, so problem framing means that what are you looking in there for the idea? So some of the idea prompts that come in there is this something that you could achieve personally? Do you know what making it could require? Where can you look for support? Another thing to look for is you identify the specific issue or problem in those prompts. That could be, can you name or describe the issue or the problem? Does it only exist, or is it a certain context, or is it universal? And where does this issue stem from? Like, what are the systems that created individual actions, program, policies? And if there's one answer to this question, how do they relate? So when you think about your idea, you have to think about what are you trying to solve in your idea? So that is something. And there's something in the chat. I was thinking, can someone read the question in the chat? I can't read it right now. Mama? I will read it for you. No questions. No, there is no question. Okay. I will read it for you if there is a question. Okay? Yes, just if you could read the questions if they come up. So the next thing is building your idea. So when you build your idea, you have to figure out what is your mandate and mission. What do we want? And then that goes into what are my operations? How are we doing it? And what are my resources and how could we make it happen? So something you all can think about is that what is your mandate? What do you want to achieve? How are you going to achieve it? And what are your resources? So who to go to, like your mentoring organization. Next is mandate, operations, and resources. A more deeper look into it is what do we want things to look at once the project is finished? That is it going to change the community? Is it going to change the world? Are we working on the roots, branches, or what root system? The question that will drive your project, and what will be doing it to make it look that way? That is the tangible actions and events. Think about the plans and actions. What do you want to achieve in your mandate, and what are the operations needed for your mandate? And next, the third part is how are you going to make this happen? The skills, the different things that are needed, how will it take place? And because of COVID, what are the requirements? Let's say you might have an online project that you want to do movie nights maybe with a group of people. So how would you want to do that? That's just an example. So next is grant writing mandates. So there is this mapping idea that there's a grant mandate outcomes. There's the good stuff, then there's your project outcomes. So a grant is what you write, mandate is what you have. That is all done. Then you think about the good stuff, and then you think about your project. It all works together. Anyone have any questions? No, Hania. Okay, so when it comes to grant writing mandates, example is Rising Youth Community Grants. Now, who is it eligible for? You have to look at the eligibility. So this is for youth 15 to 30, must be individual, not an organization, must be a volunteer, and mandate should be given to other than yourself. And mandate points is community benefit, community leadership, and unique impact. So this all goes in there because each grant has its own requirements. You must have a certain age group, certain requirements before you start applying for the grant. It is very essential. So to take an idea for this, for the grant, you need to check out the action guide that is available on the Rising Youth Canada website. And there's 3 levels of grants. So there's 3 levels you could apply for. They all have similar requirements. So one is the 250 that is like a simple gathering. Another is 750 that is like a community garden or delivering packages. Another one is 1500 that is like for a larger group or for like, let's say a tree planting event that could come under 1500. Now, what are your ideas? What would you like to do with these amounts if you receive any of these grants? Anyone, give me ideas. What would you like to do? I want to think about what you want to do. So, Yanti, you're about to say something? Asking me?
Yes. Hanya, what is can- I would like to have a mushaira. Then I think that could go for either 1,500 or 250, or actually could go for all three, depending on what your I mandate think is. it should be 750 will be enough. I was thinking about that too. And then, yes. So Hanya, where Surjit ji is going for 750, I'll suggest for 1,500 because I want that if all the poets, they will get some kind of honorarium, it will be good. Yes, Yeah. in 1,500 you can actually pay the people. In 750 and 250, I think is more for yourself. But it depends on how big your project is. Yes, I have a hand, raised hand from Gulnaz. So yes, Gulnaz. But Hanya, the age limit is 15 to 30 only. Yes, Yes, I am so 15 years old. So, no. Let me tell you how it works. So yes, it's 50 to 30, but if you're with a mentoring organization, you benefit the mentoring organization. That's what I did. Okay. So if- sorry, Gulnaz, this is if, right? If say we are under 30 because youth is not here right now, Mhm. so we can ask some questions to clarify. Okay, Yes. we are asking on their behalf, right? Yeah, Yes. yeah. Yeah. So next is key requirements. Now, other than the age, there's a few things. It must be led by youth. It must be done through volunteer time, not on behalf of an organization or a volunteer-led youth organization. And it shouldn't be a continuing of an already existing project. It shouldn't be a simple purchase. It shouldn't be a fundraiser, but it has to be reported within 30 days. So the thing is, this is all youth-led. It has to be a brand new idea, which you can see by listening to this, right? So the youth that are going to be applying for this, yes. Anyone has any questions? Yes, Hanya, let's say that somebody wants to start their jewelry making business. Yes. So they can apply. They can apply as an individual. Yes, they can apply as an individual, but I've also noticed it, organizations do apply, but that is a different category in this. But we're talking about individuals here. So yes, that is allowed, but you have to be with the organization while you're applying because you need someone that you're going to work with later on. Yes, Gulnaz, you have your hand up. Hanya, suppose that someone is interested to start something like any technical, like to teach someone, to help someone, and so what kind of paperwork he will, I mean, what kind of paperwork, there will a lot of paperwork you need to submit there? No, What are, it's all I done mean, online. It's all done online. The but final report they is done need online. they need any documents, they need any documentation? They due to what I know, you just need your ID card with you. That's all you send a picture of when you send in your application. Then within 30 days you get your response, and then starting from the next few months you start your project. Then the only thing they You- ask for is photos and anything relevant. That's it. Not much. Like you have to I mean, you have to make them satisfied that what are you going to start. You Yes. have Yes. to give them Yeah, we need any. approval. Yeah. Yes, approval is first. Then you can they walk you through the steps on how to do it. So that is all. We can get the approval just to tell them our ideas. No, you have to first send your application. Then once you send your application within a month or so, or maybe even in 2 weeks, because I got my approval within 2 weeks, right? So in there you'll have one of your coordinators coordinate with you. And once your coordinators coordinate and they figure out what your project is, then they will send you an approval letter. Then in there, they send you the grant, and then you have to use that grant within the start date of the project to the end date that is required, as it goes with the grant. So you have to follow. So you have to show them like something, your Facebook page or your Instagram page. No, I will walk you through those steps too. Just hold on. Okay, So, okay, got it. Okay, so this is some of the Canada Service Corps national, like some of their organizations that they're with. You could see.
And so the only thing you have to remember is that you have to design, apply, launch, and share. And you can check that out on the Rising Youth. And thank you. So, okay, now I can walk you through all the questions. So, yes, So eligibility is through the writing, right? When you Yes. apply. So they will Yes. see somebody is eligible or not, right? yes. And often it's the youth that apply in there, they're actually the first time youth, the first time grant writers that Okay. often apply this. So only first time, right? Yes. That's why their staff, they're always ready to help Okay. in this. And they can deny also, right? Yes, because I did apply for one after and it did get rejected because it said you can only do one. But after that, I was in the train the trainer, so that was good for me. So yes. Anyone else has any questions? Hania, suppose I want to start this gardening. You Yes. are not 15 years old. No, I'm saying behalf of someone. Okay. Mhm. I'm not. I'm going just to- joking. I get that. I suppose he or she, or suppose me, I am 15 years, suppose. Suppose, yes. I want to start gardening. And the land should be my own, or I can do this on others' lands. You must be with a mentoring organization, somewhere where you volunteer and somewhere where there's a need. As long as you're with them, you can do any projects. That's the only thing I can say. Okay. And they're Hello, all Param. from Welcome. Thank you. Yes, Hania, continue, please. yeah, I was saying this is often like the youth who do these projects, like if they're all new to this. So no matter if you're an organization or if you're individual, they will walk you through the steps. So it's like even if you get approved or you get rejected, they will tell you right away. They're really good. Suppose I can send my photographs of the land or the whatever I want to produce. Yeah. As long as you're with a youth and you're with a mentoring organization, you can do that. Okay, thank you. Anya, I have a question. How long is the application? The application takes about 30 minutes, not more than that. You have to Okay. give in the budgeting there, your timeline there. You have to tell about what is your mandate in there. What is the name of your project? All these things. You know how you write a project report? It's where you do it in school. It's the same thing where you do with a grant, but you're doing it online. So that's the easy way to explain this. Good. Wonderful. Thank you. Any other question? Hi, Rintu. You're welcome, Rintu. Yes, any other question? हाँ सत श्री अकाल भैन जी सत श्री अकाल सत श्री मैं बाहर आ मैं इस करके मैं बंद ही मैं सुन रही हूँ Okay, okay. थैंक यू Uh-huh. नाइस Hanji, anybody else has a question? No, thank No. you so much, Hania. Thank you. Thank you. That was a good presentation. So now we Yeah. know how to write a grant, right? If we need some money to start something, like Yes, and I'm open to if doing you more are- workshops like this soon. okay, if youth needs money to start something, they can apply for grant to Government of Canada, right? It's Rising Youth. Rising Youth. Youth. Okay. very informative session Yes, Hania. it's very informative. And you did it as fast as Thank you. anything. Very good. Thank you. Hania, is there any link to go to their website where they can Yes, apply? I'll share the link right now. That way you could just check it out. It's very easy to find their link. Why don't just you share. write the link in the chat? Yes, So that I yeah. will. Yes. Yeah. So the link is everybody here. can. Yeah. I think the people who have kids, they might be interested in it. Yes. Oh, it's www.risingyouth.ca. Okay. Yes. So, Uzma, shall we start Ji- with Gigi, Paran?
जी Okay. Hello Param, Param Sara. हाँ जी, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਪਰਮ। हाँ जी। Param Sara is a wonderful person. She is a wonderful poet, and I have known her since many, many years. And whenever we have any, what do you call, whenever we need any speaker to speak in a conference, we always, I always rely on her. ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਤੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਦੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲ ਦੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। And she writes beautiful poetry. And I am fortunate ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ, I have written the preface of her poetry book, and welcome, you are welcome aboard. So now her professional introduction, apart from this friendship, Param is a mental health nurse, which we all know, with more than 2 decades of experience. She is a well-being and mindset coach and motivational speaker. She works with people who are living with mental health challenges or who feel stuck in life in general, and she inspires people to live life to the fullest by helping people realize their own full potential. So this is Param's introduction. So today she is going to talk about understanding mental health and anxiety of going back to school and coping strategies. So you are welcome. Now time is yours. So I think we should all mute ourselves and let's listen to Param. Param, कोशिश करना कि पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश मिला के तुसी गल करो, तो simple हो जाएगी, right? Am I right, Uzma? जी, तो सुरजीत जी, हाँ जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और इनका अगर आप फेसबुक देखें तो ये रोज एक नई परम होती हैं, कभी कुछ कर रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं। इट्स सो हार्ड टू फॉलो कि ये कौन सी परम जो है वो असल है। किसी दिन वो जबरदस्त वो कर रही होती हैं, स्पीच दे रही होती हैं, कहीं मोटिवेशनल स्पीकर हैं ये, इनका मैं देख रही होती हूँ, कहीं मेंटल हेल्थ पे, और कहीं इतने अच्छे तरीके से वो बोल नहीं रही होती और मैसेज दे रही होती हैं। मैसेज ब्यूटीफुल जो ये काम कर रही हैं। और एक और काम, हाँ सॉरी, आई एम सॉरी उस्मा, हाँ जी। नहीं बताइए। नहीं आप बताइए पहले। तो आज जो हमने इन्हें बुलाया है, तो चूंकि स्कूल स्टार्ट हुए, तो हमने हनिया को इसलिए बुलाया कि वो यूथ के मुतालिक बात करें, और परम को इसलिए बताया कि जो बैक टू स्कूल एंजाइटी है उसको थोड़ा बताएं कि किस तरह पेरेंट्स डील करें, और बहुत से बच्चे कर रहे हैं। और आजकल आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है कोविड को लेके, बच्चे स्कूल भेजें ना भेजें, क्या करें, दोबारा से राइज हो रहे हैं नंबर्स कुछ। तो हम बहुत आई एम रियली ग्रेटफुल कि परम ने बड़े शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट की हमारी रिक्वेस्ट, एंड नाउ शी इज हियर। Yes. Thank you so much, Surjit. Thank you so much, Uzma. You are most welcome. I'm really grateful to be here. मैं दिल से आभारी हूँ यहाँ पे आपने मुझे बुलाया। और जैसे उज़मा ने मुझे बोला कि हिंदी में मोस्टली बोलना है, तो मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स, क्योंकि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको मुझे भी नहीं पता मैं हिंदी में कैसे बोलूं, तो उनको मैं इंग्लिश में ही बोलूंगी। सो एज सुरजीत दीदी ने बताया कि मैं मेंटल हेल्थ नर्स हूँ। सो मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। मैं एज ए एडवोकेट मेंटल हेल्थ के लिए हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि हमारी स्पेशली साउथ एशियन कम्युनिटीज में मेंटल हेल्थ पे बात करने पे मुंह पे ताले लग जाते हैं। कोई भी इस टॉपिक पे बात करना नहीं चाहता, क्योंकि इट्स अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। और हमारा क्या होता है घरों में, अगर किसी को कुछ परेशानी है भी, कोई मानसिक परेशानी है भी, तो उसको शुश कर दिया जाता है, उसको
बोलने से बंद कर दिया जाता है, बजाय इसके कि वो किसी से बात करे, डॉक्टर से सलाह ले या किसी से आपस में फ्रेंड से किसी से बात करे। सो वो चीज को हमारी स्पेशली हमारी कम्युनिटी में मैं खत्म करना चाहती हूँ। मैं वो स्टिग्मा खत्म करना चाहती हूँ जो मेंटल हेल्थ पे लगा हुआ है, क्योंकि जब हम हेल्थ की बात करते हैं, इवन WHO के हिसाब से हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल वेलबींग। सो हेल्थ का मतलब सिर्फ हमारे शरीर की हेल्थ नहीं है, इसमें हमारी मानसिक हेल्थ भी आती है, इसमें हमारी सोशल हेल्थ भी आती है, हम हमारे सराउंडिंग्स के सोशल गैदरिंग्स में कैसे डील करते हैं, इसमें हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ भी आती है जो हम प्रेयर के तौर पे जैसे यूज करते हैं। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो मेंटल हेल्थ की बात करने के लिए हमें जरूरी नहीं कि जब हम कहते हैं कि आप मेंटली हेल्दी हो या नहीं, उसका ये मतलब नहीं होता कि आपको कोई मानसिक बीमारी है। उसका मतलब ये नहीं होता कि आपको डिप्रेशन है या एंजाइटी है या मूड डिसऑर्डर है या कोई ऐसी बीमारी है। मेंटल हेल्थ का मतलब होता है कि आप जिंदगी को किस तरह से जी रहे हैं, आपका जिंदगी जीने का तरीका कैसा है, आप रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों से कैसे डील करते हैं, वो मेंटल हेल्थ का हिस्सा है। अगर हम अपने आप को मेंटली हेल्थी समझते हैं, अगर हम समझते हैं कि हम मेंटली हेल्थी हैं, तो जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, क्योंकि हमें पता है जिंदगी टेढ़ी लाइन है, ये सीधी नहीं चलती, सबको पता है हमें, और जिंदगी में कोई भी परेशानी आए, अगर हम मेंटली हेल्दी हैं तो हम उसे बिना किसी ओवर स्ट्रेस के, बिना किसी ओवरवेल्म के हम उसके साथ डील कर सकते हैं, अगर हम खुद यहाँ से तंदुरुस्त हैं। सो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, उसमें बात करने के लिए ये बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि कौन कौन से साइंस हमें अपने आप में दिखने चाहिए, जिससे हमें पता चले कि हम मानसिक तौर पे स्वस्थ हैं या नहीं। और मानसिक तौर पे स्वस्थ होने का, जैसे मैंने पहले बोला, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मानसिक बीमारी है, उसका मतलब ये है कि हम कितने बैलेंस के साथ जिंदगी जी रहे हैं, फिजिकल और मेंटल दोनों में बैलेंस होना चाहिए। सो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन रखूंगी, और वो क्वेश्चंस का अगर आप में से किसी के पास भी ऐसे हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर यस है, हाँ में है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई दिमागी परेशानी है या कोई बीमारी है। उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि हम अपना मेंटल हेल्थ स्टेटस जो है वो असेस कर सकते हैं खुद के लिए, जानने के लिए कि मैं कैसे मानसिक स्वास्थ्य के कौन से पड़ाव में हूं, वो जानने के लिए ये क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ। ये कोई डायग्नोसिस क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, रोजमर्रा अपने आप से खुद से पूछने के लिए ये क्वेश्चन है। सो पहला क्वेश्चन है कि क्या आप हर वक्त चिंता में रहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, You want us to write or speak? क्या तुसी की चाहते हो किसी की करिए, क्या करें नो हम? नहीं, आपको जवाब नहीं देना, मैं चाहती हूँ Okay. कि आप सिर्फ अपने अंदर अपने आप से पूछें, अपने आप को अंदर जवाब दें। ठीक है, मैं नहीं चाहती कि हम इसको खुले में वो करें, आप अपने आप को अपने अंदर जवाब दें। क्या आप बहुत टाइम हमेशा चिंता में रहते हैं? दूसरा सवाल, क्या आप हमेशा बहुत सेंसिटिव फील करते हैं कि कोई आपके बारे में क्या कह रहा है या कोई क्या सोच रहा है? क्या आप हमेशा इस क्या कहते हैं असमंजस में रहते हैं कि कोई आपके बारे में क्या बात कर रहा है? तीसरा क्वेश्चन, क्या आप जिंदगी में थोड़ा सा भी बदलाव आने पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं? चौथा सवाल, क्या आपको रात को सही तरह से नींद नहीं आती?
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप हमेशा दिन में थकावट महसूस करते हैं? 6वां क्वेश्चन कि क्या आप कई बार बिना कोई वजह से उदास रहते हैं? बिना वजह के मन उदास रहता है? 7वां क्वेश्चन, क्या आप बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं? 8वां क्वेश्चन, क्या आपका मूड कोई भी बाहरी सिनेरियो की वजह से, कुछ भी बाहर हुआ उसकी वजह से आपका मूड अप एंड डाउन हो जाता है जल्दी? क्या बाहर की परिस्थितियां आपको इतना प्रभावित करती हैं कि आपका मूड हाई या लो हो जाता है? ये क्वेश्चंस हैं, इनका अपने आप को खुद में आंसर करना है। अगर आपने इन सब क्वेश्चंस में से किसी का भी जवाब हाँ में दिया है तो उसका मतलब ये है कि आपको खुद की और केयर करने की जरूरत है। आपको खुद अपनी सेहत का और ध्यान रखने की जरूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोई दिमागी परेशानी है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपको अपनी जिंदगी जीने का थोड़ा सा तरीका बदलना है, थोड़ी सी अपनी रोजमर्रा की आदतों में तब्दीली लानी है। और तब्दीली लाना कोई मुश्किल बात नहीं होती, और तब्दीली लाने के लिए कोई उम्र भी जरूरी नहीं होती। किसी भी एज में, किसी भी मोड़ पर हम अपनी आदतें बदल सकते हैं। अब हम एंजाइटी की बात करते हैं। ये था मेंटल हेल्थ के बारे में कि मेंटल हेल्थ को समझना कि है क्या चीज। मेंटल हेल्थ का मतलब है कि हम कौन सी वजह से अपना मूड प्रभावित करते हैं या कौन सी सिचुएशन में हम हमेशा काम रहते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमारी मानसिक सेहत कैसी है। अब हम जब एंजाइटी की बात करते हैं, एंजाइटी तब होती है जब हम कल के बारे में सोचते हैं, जब हम कल में जीने की कोशिश करते हैं, जब हम चिंता करते हैं आने वाले कल की, आने वाले 5 सालों की, आने वाले 10 सालों की चिंता में रहते हैं। पता नहीं 5 साल में क्या होगा, पता नहीं मेरे बेटे को आज से 5 साल बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, पता नहीं मेरा घर फ्री होगा या नहीं। जब हम ये चिंता में रहते हैं, कल की चिंता में रहते हैं, तब हमें एंजाइटी होती है, क्योंकि हम आज को छोड़ के आने वाले कल की चिंता में है। और डिप्रेशन कब होता है? डिप्रेशन तब होता है जब हम बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, जब हम बीते हुए कल में जीने की कोशिश करते हैं। आज को छोड़ के जो गुजर गया उसमें जीने की कोशिश करते हैं, जो बीत गया उसके बारे में सोच सोच के खुद को परेशान करते हैं, तब हम डिप्रेशन में जाते हैं। और जब हम आने वाले कल की चिंता करते हैं तब हमें एंजाइटी होती है। डिप्रेशन के सिम्टम क्या होते हैं कि हमारा मूड हमेशा ऑफ रहता है, लो रहता है, मन उदास रहता है, किसी से बात करने को मन नहीं करता, कहीं जाने को मन नहीं करता, नहाने धोने को, सजने संवरने को मन नहीं करता, खाने पीने को मन नहीं करता, अच्छी तरह से नींद नहीं आती और किसी भी काम में मन नहीं लगता। और जो एंजाइटी होती है, एंजाइटी के सिम्टम क्या होते हैं कि हमें बहुत घबराहट महसूस होती है, हमारी धड़कन, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, हमारी सांस फूलने लगती है, हमें पसीने छूटने लगते हैं और हमारे हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं। और कई बार हमें पैनिक अटैक हो जाता है कि हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। ये सिम्टम होते हैं जब हम एंजाइटी को शुरू में कंट्रोल नहीं करते, वो बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते उस मुकाम तक पहुंच जाती है जहां फिर हम कहते हैं कि अब डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। वो होती है एंजाइटी। इन सब से बचने के लिए सबसे सरल तरीका ये है, और गुड न्यूज ये है कि कोई भी मानसिक परेशानी है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है, उस पे हमारा कंट्रोल है।
हमारे मन का हम पे कंट्रोल नहीं होना चाहिए, वो मन हमारा है, हमारा अपने मन पे कंट्रोल होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारे मन ने कैसे चलना है। इससे बचने के लिए, डिप्रेशन एंजाइटी से बचने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ आज में जीना है। आज में, आज ही तो हमारे पास है, आज ही है हमारे पास, कल का तो पता नहीं, कल का हमें नहीं पता आएगा भी कि नहीं, तो फिर हम क्यों चिंता करें कल की? क्योंकि जब वो कल आएगा भी तो वो कल नहीं होगा, वो आज होगा, राइट? तो हमें अपने आज को अच्छी तरह से जीना है। अगर हम अपने आज को अच्छी तरह से जिएंगे तो कल तो खुद ब खुद ही खूबसूरत होगा। आज को खूबसूरती से जिए, ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है मानसिक परेशानियों से बचने का, बहुत ही सिंपल। बट फिर भी हम लोग ये करते नहीं है। हमेशा हमें वो आदत बनी हुई है कि चिंता करने की आदत, बट उस आदत को हम छोड़ सकते हैं, उस आदत को हम बहुत इजीली छोड़ सकते हैं। अब हम गोइंग बैक टू स्कूल की बात करते हैं। गोइंग बैक टू स्कूल की एंजाइटी, उसका डर बहुत नेचुरल है, बहुत नेचुरल है, क्योंकि वो जो वायरस है, एक वायरस, छोटा सा वायरस है, बट वो रियलिटी है, वो रियलिटी है। और उसको हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंट्रोल करना है। उसके लिए हमने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने दवाई बना ली है, उसके लिए वैक्सीन बन गई है। बट ये अब हमारा अपना चॉइस है कि हमें उस वैक्सीन को लेना है या नहीं लेना। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबने वैक्सीनेशन लगवाई होगी। लगवाई है सबने? वैक्सीन लगवाई हुई है? दोनों दोनों हाथ खड़े करो जिसने लगवाई हुई है। गुड, खुशी हो रही है मुझे कि सबने वैक्सीन लगवाई हुई है। हालांकि ये आपकी अपनी चॉइस है, बट बीइंग अ नर्स होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि आपको बताऊं कि वैक्सीन लगवाना फायदेमंद है। हालांकि लोग कहते हैं कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स साइड इफेक्ट्स हैं, और वो साइड इफेक्ट्स किस लिए हैं? वो साइड इफेक्ट्स इसलिए हैं क्योंकि जब वो वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारे शरीर को उससे लड़ने के लिए कुछ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने पड़ते हैं। वो जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके, ताकि वो वायरस के लिए अटैक करने के लिए तैयार हो सके, हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है। तो उसके लिए वो जो सिम्टम है, वो अपनी बॉडी थोड़ा संघर्ष करती है, थोड़ा फाइट करती है। उसकी वजह से हमें कई बार थोड़ा बुखार हो गया, हेडेक होगी, टायर्डनेस होगी, नोजिया हो गया, ऐसे थोड़े से सिम्टम होते हैं। बट वो सिम्टम्स मच बेटर हैं कोविड के सिम्टम्स है। इसीलिए मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है, जो भी आपके आसपास हैं, जो भी आपके क्लोज हैं, आपके रिश्तेदार, प्लीज आप सबको बोलें कि वैक्सीन लगवाएं। और चिल्ड्रन अबव द एज ऑफ 12, वो सब भी वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि वैक्सीन से हम अपना भी, अपने आसपास का भी बचाव कर सकते हैं। और बाकी ये जो अनसर्टेनिटी है, इसका फियर हम सबको है, बट हमें क्या करना है? हम सिर्फ वो ही कर सकते हैं जो हमारे कंट्रोल में है, राइट? और हमारे कंट्रोल में वायरस का बढ़ना घटना वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में क्या है? अपनी सेफ्टी। हमारे हाथ में ये है कि हम हैंड हाइजीन पूरा करें, हाथ हमेशा धो के रखें, साफ रखें, मास्क लगा के रखें, और एक दूसरे से अगर बाहर जा रहे हैं तो एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखें। ये चीजें हमारे हाथ में है। और स्कूलों में, जहां तक मैंने सुना है कि स्कूलों में भी वो लोग सेफ डिस्टेंसिंग, सेफ प्रिकॉशंस यूज कर रहे हैं। और उसके लिए हमें एंजाइटी से, उसके डर से बचने के लिए यही है कि अपने बच्चों को भी यही बात समझाएं कि हाथ साफ करके रखें, मास्क पहन के रखें और दूरी बना के रखें। हालांकि जो छोटे बच्चे हैं उनको समझाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये है कि अगर आपको कोई ऐसी बात लगती है
कि आप कंसर्न फील कर रहे हो अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे छोटे हैं उनके लिए आप कंसर्न फील कर रहे हो, तो गो फॉर इट फॉर श्योर। जाके टीचर से बात करो, अपना कंसर्न उनके साथ शेयर करो कि हमें ये कंसर्न है। और टीचर्स भी तो वो हमारे जैसे ही है ना, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो भी तो इसी तो दौर से गुजर रहे हैं जिससे हम गुजर रहे हैं। सो एक दूसरे को सपोर्ट करके हम बहुत हद तक इस चीज को रोकने नहीं बोलूंगी मैं, इस चीज से हम काइंड ऑफ टैकल करने के लिए हम तैयार हो सकते हैं, इस चीज के साथ लड़ने के लिए तैयार हो सकते हैं। सो कुछ मैं आपको कोपिंग स्ट्रेटजीज बताती हूँ जो एंजाइटी के लिए, और नॉट ओनली सिर्फ गोइंग बैक टू स्कूल बट इन जनरल लाइफ में जो कोपिंग स्ट्रेटजीज हैं स्ट्रेस से बचने के लिए, एंजाइटी से बचने के लिए। सो नंबर 1 इज गिव टाइम टू योरसेल्फ। खुद को टाइम दें, खुद को समय दें, खुद के लिए समय निकालें। स्पेशली वी वुमेन, वी हैव अ हैबिट, हमें आदत होती है सबके लिए काम करने की, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखना। ये बहुत ही गलत बात है। खुद के लिए समय निकालें, थोड़े से सेल्फिश बने, खुद पर ध्यान, खुद की सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि जैसे वो कहावत है ना, यू कांट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। हम खाली कप से किसी दूसरे का कप नहीं भर सकते। हमारा खुद का कप अगर ओवरफ्लो हो रहा है फिर ही हम दूसरे के कप में डाल सकते हैं। सो पहले अपना कप भर लीजिए प्लीज, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और अपनी सेहत के ध्यान रखने के लिए पहली बात यह है कि अपने आप को किसी हॉबी में डालें, जो चीज आपको खुशी देती है वो करें। वो चीज कोई भी हो सकती है। आपको गार्डनिंग का शौक है, जैसे अभी नरेंद्र कलसी जी बोल रही थी गार्डनिंग के बारे में, वो आपको शौक है। तो जैसे सुरजीत दीदी है, इनको लिखने का शौक है, उज़मा को फोटोग्राफी का शौक है। ऐसे कुछ ना कुछ अपनी हॉबी पालें जिससे आपको खुशी मिले। वो काम करने के लिए एटलीस्ट रोज आधा घंटा जरूर निकालें। अगर ज्यादा नहीं निकाल सकते तो हर रोज आधा घंटा अपने लिए जरूर निकालें, क्योंकि अगर आप ऐसी चीजों में व्यस्त रखेंगे अपने आप को जिसमें आपको खुशी मिलती है, तो फिर आप स्वस्थ रहेंगे। खुशी वाली चीजों में व्यस्त रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है, आप सैर करने के लिए जा सकते हैं। सैर करने के लिए जाने का मतलब ये है कि आप जब सैर कर रहे हैं तो सैर ही करिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम सैर करने के लिए जाते हैं, फोन पे किसी से बातें कर रहे होते हैं, इंडिया में फोन लगाया होता है और चुगलियां चल रही होती हैं। वो क्या है कि वो हमारी सैर हमारे शरीर को जरूर फायदा पहुंचा रही है, हमारी टांगे काम कर रही हैं, बट उसका हमें यहाँ कोई फायदा नहीं हो रहा। सो इसलिए अगर सैर करनी है तो सिर्फ सैर ही कीजिए। जब हम बाहर जाते हैं, फूलों को निहारे, पौधों को निहारे, ये ट्रीज को देखें, पंछियों की आवाजें सुने, पानी की आवाज सुने। आप अगर आप लकी हो, आप पानी के पास रहते हो, तो पानी की आवाज सुने। ये चीजें जो हैं, जब हम सैर करते वक्त नेचर की तरफ ध्यान देंगे तो इसका हमें मानसिक सेहत के लिए भी फायदा होगा। सो इसको कहते हैं माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है जो काम कर रहे हैं उसी पर ध्यान दें। सैर करनी है तो माइंडफुली सैर ही करें। कुकिंग करनी है तो माइंडफुली कुकिंग ही करें। कुकिंग भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस रिलीवर है। मेरे को जब भी मुझे लगता है कि कभी मैं थोड़ा स्ट्रेस में हूं तो आई जस्ट फाइंड पिंटरेस्ट पे कोई नई रेसिपी ढूंढ के मैं वो बनाना शुरू कर देती हूँ। वो बहुत ही स्ट्रेस रिलीव होता है, क्योंकि उससे क्या है, आपका ध्यान हट जाता है प्रॉब्लम से। जो आप सोच रहे हैं उससे आपका ध्यान हट जाता है और आपको थोड़ा मन शांत हो जाता है। क्योंकि जब हमारा मन शांत होगा तो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें इजीली मिल जाएगा। जब हम स्ट्रेस लेवल पे होते हैं, हाई स्ट्रेस लेवल पे जब हम सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो सॉल्यूशन नहीं मिलता। जब हम प्रॉब्लम पे फोकस हैं तो प्रॉब्लम के बाद प्रॉब्लम ही मिलेगी।
जब हम सॉल्यूशन पे फोकस होंगे तो सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन सॉल्यूशन पे फोकस करने के लिए हमें यहाँ पे शांति होनी चाहिए, मन हमें शांत होना चाहिए, इसीलिए हम सॉल्यूशन पे फोकस कर सकते हैं। और दूसरी है कि प्लीज प्लीज स्टॉप वॉचिंग न्यूज, प्लीज खबरें देखना बंद करें। खबरों में सिर्फ नेगेटिविटी है, वो कोई भी आपको अच्छी बात सुनाने वाले नहीं है, क्योंकि अच्छी बातों से उनके चैनल नहीं चलते, उनके चैनल सिर्फ सनसनीखेज बातों से चलते हैं, और वो सनसनीखेज बातें हमारे यहाँ पे बहुत बुरा असर डालती हैं। वो हमें 1-2 दिन में, 1 साल में, 2 साल में पता नहीं चलता, लेकिन चलते 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 वो यहाँ पे घर कर लेती हैं। वो बहुत बहुत हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बैड इफेक्टिव है, बैड इफेक्ट करती हैं हमारी मेंटल हेल्थ को। डिस्टेंस क्रिएट करें अपने और टीवी में, डिस्ट्रैक्ट करें। जो आप समय टीवी देखने में बिताते हैं, कोशिश करें उस समय को किसी और चीज में, उस समय बाहर निकल जाएं, सैर करने के निकल जाएं, या कोई बुक पढ़ना शुरू कर दें, या कोई म्यूजिक सुनना शुरू कर दें, कुछ लिखना शुरू कर दें, कुछ भी ऐसा करें कि आपको टीवी देखने की जरूरत महसूस ना हो। मेरे को कई बार मेरे को लोग कहते तू क्यों तू टीवी नहीं देखती, न्यूज नहीं सुनती, तेरे को पता कैसे चलेगा बाहर क्या हो रहा है? मैंने बोला अगर दुनिया का अंत होने वाला होगा ना तो मेरे को पता चल जाएगा, कोई ना कोई बता देगा। उसके लिए मुझे न्यूज सुनने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मुझे 24 घंटे अपने दिमाग में ये घमासान युद्ध करने की जरूरत नहीं है। सो प्लीज न्यूज देखना बंद करिए। और सोशल मीडिया भी, कई बार सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी होती है, सो कोशिश करें कि सोशल मीडिया से भी थोड़ा दूरी बना के रखें। बहुत सारी अच्छी बातें भी होती हैं, अच्छी बातों को ले, बुरी बातों को इग्नोर करते जाएं, उनको सुने नहीं। अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए ही कोविड के रिलेटेड, वैक्सीन के रिलेटेड, किसी और बात के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज गो ऑन टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट और गो ऑन टू मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गो ऑन टू ओंटारियो हेल्थ वेबसाइट। जो ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं उनसे इंफॉर्मेशन लें, ना कि किसी ने फेसबुक पे डाल दिया मैंने आज दूसरी वैक्सीन लगवाई, मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए, आप सोच समझ के लगवाना। उन बातों पे ना जाए, क्योंकि सबका शरीर डिफरेंट है, सबकी बॉडी डिफरेंटली रिएक्ट करती है वैक्सीन को। सो उनकी बातें सुनकर प्लीज अपनी सेहत खराब मत करें। और तीसरा है एक्सरसाइज। जो एक्सरसाइज है वो स्ट्रेस रिलीव करने का नंबर 1 तरीका है, नंबर 1 तरीका। क्योंकि क्या होता है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी के जो हैप्पी हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं। जब हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो हमारा मूड अपने आप खुश हो जाता है। क्योंकि जो हमें दवाइयां मिलती हैं, जो एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी दवाई डॉक्टर देते हैं, वो क्या होता है, उनके सॉल्ट्स जो होते हैं उनमें वही सॉल्ट्स होते हैं जो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं, बट हम उनको एक्टिवेट नहीं कर रहे। उनकी मात्रा यहाँ पे कम हो जाने की वजह से हमें एंजाइटी डिप्रेशन होता है। अगर हम उनको एक्टिवेट करते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, सही खाना खाते रहें, सही टाइम सोते रहें, अच्छी चीजें सुनते रहें, अच्छी चीजें देखते रहें, तो हमें दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और नेक्स्ट है मेडिटेशन। मेडिटेशन मुझे लगता है आजकल सभी लोग बहुत अवेयर हैं मेडिटेशन के लिए। सो मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप थोड़ा समय शांति में, एकांत में चुपचाप करके बैठे, अपने सांस में ध्यान दें। उसका मतलब ये है कि हमें अपने दिमाग में जो चल रहा है उससे हमें अपना ध्यान हटाना है, किसी और जगह पे ध्यान लगाना है। मेडिटेशन जो है वो 2-वे कम्युनिकेशन है विद हाई पावर। जिसको भी आप मानते हैं, आप गॉड कहो, खुदा कहो, कुछ भी कहो, मैं सुपर पावर कहती हूँ, उनके साथ जो हमारा कनेक्शन है वो मेडिटेशन के साथ जो है वो आदान प्रदान वाला कनेक्शन हो जाए। जब हम प्रेयर करते हैं दैट्स अ 1-वे कम्युनिकेशन। जब हम प्रेयर करते हैं तो सिर्फ हम ही बोलते जाते हैं, भगवान मुझे दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे, वो दे दे। वो हम सिर्फ मांगते रहते हैं, वो सिर्फ 1-वे कम्युनिकेशन होती है। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं, चुपचाप बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं, उसको 2-वे कम्युनिकेशन कहते हैं। और मेडिटेशन बहुत ही अच्छी चीज है
हमारे मानसिक संतुलन को बैलेंस रखने के लिए, हमारा मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए, मानसिक शांति के लिए। और एक मैं बोलूंगी कि स्लीप, सोना, अपने सोने पे बहुत ध्यान दे। आजकल ये फैशन हो गया है, लोग बहुत बोस्ट करते हैं कि मैं तो सिर्फ 4 घंटे ही सोता हूँ, मैं तो पूरा टाइम काम करता हूँ। ये अच्छी बात नहीं है, ये कोई बोस्टिंग करने वाली बात नहीं है। आपके शरीर को 7 से 8 घंटे की नींद की जरूरत है, वो जरूर लें, क्योंकि जब हम सोते हैं ना, तब हमारे शरीर में नए न्यू सेल्स बनते हैं, हमारी बॉडी की रिपेयर होती है जब हम सोते हैं। तो इसलिए स्लीप बहुत जरूरी है, स्पेशली द स्लीप वी गेट बिफोर मिडनाइट। मिडनाइट से पहले वाली स्लीप है वो बहुत ही जरूरी है। इसलिए प्लीज, और अगर किसी को ये प्रॉब्लम है कि आपको रात को नींद नहीं आती है अच्छी तरह से, तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ कि नंबर 1, आप अपना सोने का समय निश्चित करें। जिस टाइम पे बेड पे जाते हो, जिस टाइम पे बेड से उठते हो, वो निश्चित करें और वो फिक्स करें हर रोज। अगर आज 10 बजे बेड पे जाते हो तो कोशिश करें नेक्स्ट डे भी 10 बजे बेड पे जाएं। अपना एक स्केड्यूल क्रिएट करें। उससे क्या होगा, हमारा जो इनर बॉडी क्लॉक है वो आउटर बॉडी क्लॉक के साथ मैच करना शुरू कर देता है। उससे क्या है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये अब सोने का टाइम है, तो आपको ऑटोमेटिकली उस टाइम पे नींद आनी शुरू हो जाएगी। सो अपना स्केड्यूल फिक्स करें। सेकेंड, सोने से एटलीस्ट 3 घंटे पहले खाना खाएं। जो भी खाना है 3 घंटे पहले खाएं, और कोशिश करें कि चाय, कॉफी, अल्कोहल बेड टाइम के ज्यादा नजदीक मत लें। लेट इवनिंग में चाय कॉफी का सेवन मत करें। और यह है कि बेड को सिर्फ सोने के लिए ही यूज करें। उससे मेरा मतलब यह है कि बेड पे बैठ के टीवी मत देखें। रिमोट को और टीवी को बेडरूम के बाहर ही रखें। बेडरूम में आप बैठ के फोन मत यूज करें, लैपटॉप मत यूज करें। बेड पे बैठ के, बेड के साथ हमारा रिश्ता सिर्फ सोने का होना चाहिए, ताकि हमारे मन को पता चले कि ये बेड है और इस पे मैं सोने के लिए जाना है। वो अपना रिलेशन ऐसा बनाए तो बेड के लिए कि हमें पता है कि बेड पे हमें सोने के लिए जाना है। जब हम बेड पे होंगे तो हमें नींद अच्छी आएगी। और एक बात और, जो हमारे बेडरूम का एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा सा टेम्परेचर जो है कोल्ड रखें बेडरूम का, उससे हमें नींद ज्यादा अच्छी आती है। अगर ज्यादा गर्मी रहेगी बेडरूम में तो उससे नींद अच्छी नहीं आएगी। और क्या कर सकते हैं आप, हाँ, अगर आपको दिन में सोने की आदत है, क्योंकि गर्मियों में तो दिन बड़े होते हैं, खैर अब तो छोटे होने शुरू हो गए हैं, गर्मियों में दिन बड़े होते हैं, तो आपको दिन में सोने की आदत है तो कोशिश करें जो आपका दिन का नैप टाइम है 15 से 20 मिनट से ज्यादा ना हो। सिर्फ 15 से 20 मिनट, वो हम उसे कैट नैप बोलते हैं या क्या बोलते हैं, पावर नैप। 15-20 मिनट सो के भी आपका बॉडी रिफ्रेश हो जाएगी। उससे क्या है, आपकी रात की नींद भी खराब नहीं होगी। अगर हम दिन में ज्यादा टाइम सोते हैं तो उससे हमारी रात की नींद है जो वो ज्यादा डिस्टर्ब होती है। और लास्ट में, फूड, जैसा अन्न वैसा मन। फूड अफेक्ट्स आवर मूड। जो हम खाते हैं वो हमारी सिर्फ फिजिकल बॉडी को ही नहीं, हमारे दिमाग पे भी असर करता है। जैसा हम खाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। इसीलिए प्लीज ध्यान रखें कि अपनी डाइट में ज्यादा से ज्यादा फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें और पानी ज्यादा से ज्यादा पिएं। कम से कम 7 से 8 गिलास पानी रोज पिएं, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। सो पानी हमारी जरूरत है। इसीलिए कोशिश करें कि डिहाइड्रेशन बिल्कुल ना हो आपको। पानी 7 से 8 गिलास हर रोज जरूर पिए। जब मैं बात कर रही हूँ कि खाने की, उसी तरह से जैसे हम शरीर में डालते हैं उसका हमारे शरीर और मन पे असर होता है, वैसे ही
जो हम दिमाग में डालते हैं उसका भी हमारे दिमाग पे और शरीर पे असर होता है। सो कोशिश करें कि अच्छी वीडियोस, अच्छी बातें सुने, अच्छी बातें देखें, अच्छे विचार अपनाएं। आप लोग बहुत आई एम श्योर मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो आपके विचार तो अवश्य अच्छे हैं। अगर कोई मुझसे छोटा मेरी उम्र का है तो मैं खुद को भी इसमें गिनती हूँ। मैं खुद भी इन्हीं बातों पे अमल करने की कोशिश करती हूँ जो मैं आपको बोल रही हूँ। मैं अलग नहीं हूँ आपसे, मैं खुद भी ये बातें करती हूँ और इसीलिए मैं आपको बता सकती हूँ। क्योंकि मैं एक चीज शेयर करनी चाहूंगी कि मैं खुद, मेरे को डिप्रेशन हो गया था। मेरे को डॉक्टर ने बोला था कि तुझे डिप्रेशन है और उसने मुझे इतना थब्बा गोलियों का दे दिया। मैंने कहा कि मुझे गोलियां नहीं खानी, हालांकि मैं नर्स हूँ, रोज गोलियां देती हूँ लोगों को मैं बट मुझे पता था कि ये गोलियां में जो है वो मेरे यहाँ पे है और मैं इसे कंट्रोल कर सकती हूँ। नाउ इट्स बीन 2 years, आई एम परफेक्टली फ्री ऑफ डिप्रेशन। वो कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव लाए, मैंने अपनी आदतें बदली, आदतें बदलने के साथ मेरी सेहत भी बदली। और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि अवॉइड व्हाट इफ्स। जब हम सोचते हैं ना, अगर ये हो गया तो, अगर वो हो गया तो, अगर उसने मेरे बारे में ऐसा सोचा तो, ये चीज को लेट्स कट दिस ऑफ, लेट्स डिस्कनेक्ट फ्रॉम इट। सब तो वड्डा रोग की कहणगे लोग। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं उसके लिए तो सोचो ही मत। उसके सोचने के लिए लोग हैं, उसको हमें नहीं सोचना लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को जो सोचना है सोचने दो। आप अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हो उस पे ध्यान रखो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी सेहत पे फोकस करो। बाकी जो लोगों ने तो बोलना है, लोगों का काम है बोलना, राइट? लोग वो क्या गाना है ऐसा, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, राइट? सो व्हाई शुड वी बॉदर अबाउट व्हाट लोग क्या बेकार कहते? की बातों में बीत न जाए रहना। या राइट। या और लास्ट में मैं ये कहूंगी कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करो किसी के साथ भी, उनको अंदर मत रखो। जो इमोशंस, जो फीलिंग्स हमारे अंदर दबती रहती हैं, घुटती रहती हैं, वो एक भयंकर लावा बन जाती हैं अंदर, और वो लावा फिर ऐसे भयंकर रूप में उग के सामने आता है। फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड डिसऑर्डर, वो ऐसी बीमारियों के रूप में सामने आता है, हाई ब्लड प्रेशर के रूप में सामने आता है, डायबिटीज के रूप में सामने आता है। सो प्लीज किसी के साथ भी जिससे आपको अच्छा रिश्ता है उनके साथ बात करें, खुल के बात करें, मन की कोई भी परेशानी उनके साथ शेयर करें। अगर आपको कोई और नहीं मिलता बात करने के लिए, प्लीज मुझे फोन करें। आई एम सो हैप्पी टू हियर ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। मैं सुनूंगी आपकी बात, मुझे फोन करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी से बात करना चाहते हैं, आपको कोई नहीं मिल रहा बात करने के लिए, आप मुझे फोन कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। उज़मा जी के पास, सुरजी दीदी के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले सकते हैं। और बाद में यही आई होप कि जो मैंने आज प्रेजेंट किया उससे आपको कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी नरेंद्र जी, आप म्यूट पे हो। जब कोई ऐसे इंसिडेंट हो गए कि बड़ी डिप्रेशन हो रही है, बड़े सोच रहे हैं, कोई बात करने के लिए नहीं है, तो जाके अपने जो गार्डन में प्लांट्स हैं उनको सुना दो सारी बात, कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल, और सारा जान लिख लो उनको, लिख के फाड़ लिख दो, लो, लिख के फाड़ दो, बरका फाड़ दो, बस खत्म। आज तो बाद एक काम खत्म, ये यहाँ कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। या Very वेरी nice. ऐसे ही करती हूँ। वेरी नाइस। या वेरी नाइस, वेरी नाइस। और एक्चुअली लोगों की बातों का परवाह ना करो। यू हैव बिल्कुल टू भी टीच नहीं। योरसेल्फ, अपने को टीच ही करना है कि किस तरह से बैलेंस में रहना है ना। अगर सोचने लग जाओ तो फिर आदमी सोचता ही जाता है, फिर
सचमुच ही डिप्रेशन हो जाता है कि अगर आप ध्यान देने लग जाओ, अब उसने ये कहा, उसने वो कहा, छोड़ दो। एक बात बताऊं ये अभी हमने ये हाउस शिफ्ट किया शायद, जो पहला था ना, वहाँ हमारे पड़ोस में एक लेडी रहती थी, ओल्ड थी, मैं भी ओल्ड ही हूँ, पर वो तो मैंने जब भी निकलना ना, अब मेरे पता नहीं मेरे को आता है, मैं हर एक तरह का ड्रेस पहन लेती हूँ, साड़ी भी बांध लेनी, मैं पैंट भी पहन लेनी और प्लाजो भी पहन लेना, जो भी मेरा दिल करता मैं पहन लेती हूँ, मैं नहीं बॉदर करती। अब एक दिन कहने लगी तू की है नमूना जा, कदी कुछ बन जाती कदी कुछ बन जाती है। मैं कहा तुसी सोची जाओ जो सोचना, मैं तो जो चंगा लगता मैं वो करना। बिल्कुल कहती बड़ी ढीठ है तू, मैं कहा मैं तो जो चंगा लगता मैं वही करना, जो चंगा लगदा वही पाओ। बिल्कुल ते बिल्कुल बस वही कोई नहीं, हट गई बेचारी। और सोचा कि अब क्या कहूँ इसको, इसने तो अपनी मर्जी करनी, मैं तो अपनी मर्जी करूँ, जो मुझे अच्छा लगेगा करूँगी, जो नहीं लगेगा नहीं करूँगी। हाँ हाँ जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल 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 लोगों की बिल्कुल। बातों का तो परवाह नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी उज़्मा जी। जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन, इतने प्यारे Thank तरीके you. से, इतनी स्वीटली आपने बताया कि वो लग ही नहीं रहा कि हम एंजाइटी की बात कर रहे हैं, कि डिप्रेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारा एवरीडे जो लाइफस्टाइल है उसको कैसे जीना चाहिए, बड़े आसान तरीके से आपने बताया। थैंक यू सो मच। अब मैं ये सोच रही थी, कितने लोग इंश्योरेंस वाले, आप कहती हैं कल की फिक्र ना करो, वो तो बेचारे नाराज हो जाएंगे उनके तो बिजनेस खत्म हो जाएंगे, उनका बिजनेस ठप हो जाएगा। बिल्कुल मैं कह रही थी कि अगर माइंडफुल कुकिंग ना करें, ठीक है, तो होता ये है कि खाना जल जाता है और फिर स्ट्रेस शुरू हो जाता है। हाँ होता है ना, या नमक 2 दफा डल गया, दिमाग कहीं था, कुछ चल रहा है, हाँ, तो वो कुकिंग जो है उसको पूरे टाइम, मेरे जैसे ना जिसका जल जाता है खाना, फिर सोचते हैं, अब क्या पकाया जाए, क्या किया जाए, क्योंकि वो मल्टीटास्किंग में जो चीजें आपने मना की, मैं फोन भी कर रही हूँ, साथ टीवी भी लग रहा है और बात भी किसी से हो रही है, बड़ा कुछ हो रहा है, तो फिर खाने में कई दफा नमक 2 दफा डल गया या डला ही नहीं, जो भी है वो। और आपने वो जो बात की कि दिल की बात कहनी चाहिए, तो हम लोग हर फ्राइडे को यहाँ होते हैं दिल की बात करने के लिए, हमारा वो सिस्टम है। उसके अलावा अभी मॉल्टन विमेन काउंसिल ने पीयर एम्बेसडर्स इंट्रोड्यूस किए, जिसको भी किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, हमारी सुरजीत कौर जी इज वन ऑफ आवर पीयर एम्बेसडर, हमारी गुलनाज है, फरहत चुगताई है, तो हमने कम्युनिटी में 10 ये हमारे एम्बेसडर्स हैं जो आप लोगों की हेल्प के लिए, जो किसी को किसी तरह की भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो है। मैं करमजीत को यहाँ वेलकम करती हूँ, हमारे प्रोग्राम में आई हैं, और यहाँ 2 लोगों के हाथ खड़े हैं, तो सुरजीत जी आगे आप कर लीजिए इनको मॉडरेट। पहले किसने किया? रिंटू, चलो रिंटू पहले आप बताएं क्या कहना चाहते हो। उससे पहले एक बात मैं कह दूं रोजमा, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे परम जब बोल रही थी ना, मुझे ऐसे लग रहा था जैसे नानी माँ धीरे धीरे स्टोरीज सुना के हमें समझा रही, और ईच एंड एवरी हर बात इतनी अच्छी तरह से समझ आई ना। और जो इन्होंने कहा कि माइंडफुलनेस की जो कुकिंग करनी, जो भी आपने भी कहा, मुझे याद है कि घरों में, हमारे घरों में कहते थे कि सिर ढक के वाहिगुरु का नाम लेके, मीन्स गॉड का नाम लेके फिर कुकिंग करें। उसका क्या था कि पॉजिटिव एनर्जी दें, क्योंकि अगर आप सोच कुछ नेगेटिव रहे हैं तो वो नेगेटिविटी जो है वो खाने में चली जाएगी, आपकी सारी फैमिली ने वो खाना खाना है। सो ये सारी बातें हमारे, एक्चुअली हमारे कल्चर में ये सारी बातें हैं, लेकिन हम भूल गए हैं, अब हम दूसरी तरह से सीख रहे हैं। सो जब परम बोल रही थी तो मुझे लग रहा था कि नानी माँ जो है ना वो दोबारा से वो बातें दोहरा रही है। थैंक यू, सच प्रेजेंटेशन। हाँ जी रिंटू जी, सॉरी ਤੁਹਾਡਾ टाइम ले लिया मैं। हाँ जी। नहीं नहीं भैन जी, बहुत चंगा लग रहा सी मैनू, मैं गल सुन रही सी। सब तो पहला तो मैं कमेंट ही करना चाहती सी कि परम नू अज इन्नी सोहनी हिंदी बोलदे देख के
Yeah. ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਠਹਿਰਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ शुद्ध हिंदी बोल रही सी, शुद्ध हिंदी। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨੀ ਵਾਲੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਣੀ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਪਰਮ ਯੂ ਡਿਡ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੌਬ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ 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 ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ so much for your wonderful session. Thank you, Love you. Didi. Thank you, Thank you Rintu. so Thank much. you. Love you too. हाँ जी हनिया जी, अब आप आए। हाँ जी। Yes, I have a comment to say in here. I love your presentation. I love the point where you mentioned cooking, and when you mentioned not to think about what anyone sees, because me as a blogger, YouTuber, I've been doing so much, but I never care what people say. I just keep my video on there, no matter what. I always do that. Even if it's the craziest recipe, I didn't put that and I just let it be. So that's something I want to comment. And mindful thinking, I'm very open to trying new recipes, to creating new recipes all the time. So I love doing something crazy each time when I do recipes. Very So good. I agree with you on that. Very good. Very good. आपका YouTube जो चैनल है, सॉरी नरेंद्र जी, हानिया आपका YouTube चैनल कुकिंग का है? It's many different things. I also Oh, run a okay, show okay. called the Hanya Show. I would love to interview you on it. Hania's travel. Yes. Okay, I do okay. cooking, I do reviews, I do different kind of things in there. I'll actually share my YouTube link in there too. I'll share my YouTube link too with you. It's Oh. Paramsra on YouTube. वो कहते Um, हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, so that is Hania. Paramji, हाँ जी, this session was excellent. thank you. And we were feeling as if we are sitting in our home and Yes. someone is telling these things, not on this laptop. Yeah, So it was very nice. thank you so much. I नरेंद्र wish जी, you should come again. Thank you. नरेंद्र जी, आप ये सोचिए अगर इतनी प्यारी सी नर्स जो है वो अपने क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, जहां भी ये काम करती हैं, ये वहां हो तो कितने मरीज खुश होते होंगे। मैं तो वो कहती हूँ, एक तो फिजिकली इतनी ब्यूटीफुल और अच्छा, और सहज से वो बोलना करना, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी इनका पेशेंट जाना चाहता होगा। एक कमेंट जो मुझे हमेशा मेरे क्लाइंट से मिलता है उस्मा जी, वो ये है कि मेरा इंजेक्शन, मैं जब भी इंजेक्शन लगाती हूँ तो वो बोलते हैं वो दर्द नहीं करता। आपके टच, मैडम जो आपकी बातों में अपनाइयत है ना, आई एम श्योर वो आपके टच में होगी। ठीक है, और क्या चाहिए होता है मरीज को, कोई ऐसा जो उनका ख्याल रखे, जो उनसे कनेक्ट हो जाए, और वो मैं फील कर सकती हूँ जो एनर्जी यहाँ है। I don't know उस्मा जी, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, इसके बच्चे जो है ना वो कॉलेज गोइंग है, वो उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है। देखो ये लगती लड़की जैसे अभी अनमैरिड है। Look at her. This is because of ये पॉजिटिविटी जो है ना उसकी वजह से ये, that's amazing, right? Thank you so much. आज परम है ना काला कुला टिक्का लगा ली, नजर ना लग जाए। काली शर्ट पाई है, काली शर्ट पाई अपने आगे नजर नहीं लगती हुंदी। मुझे तो जाना पड़ेगा, अब 8 बज रहे। ठीक ठीक, Okay. थैंक यू सो Okay, मच, थैंक यू सो मच Bye एवरीवन। bye. Anybody else? आप किसी को, if somebody else has any question, please. हेलो मैम, आई डोंट हैव क्वेश्चन, बट आई रियली अप्रिशिएट कि इन्होंने मेरे को ऐसे समझा कि मैं भी इस सेशन का एक हिस्सा बनूं। Of course. और शी वाज माय टीचर एंड I met her like 2 months ago after 17 years. So I'm so happy to like see her in my life again. Okay. अच्छा, परम का स्टूडेंट ने? हाँ जी, करमजीत मेरी स्टूडेंट है, नर्सिंग स्टूडेंट, इंडिया तो। You welcome and you can always join us. Thank you. Thank you. We can send you the information if you want. हाँ जी. Okay, yeah, sure, ma'am. Thank you. So, anybody else? Gulnaz, Farha तुसी चुप हो, कुकिंग हो रही होनी है।
So Uzma, सॉरी सुरजीत जी, मैं ना गड्डी च भी सुनदी सी अच्छा क्योंकि मैं आउट ऑन एन एरंड ते ओ मैं अच्छा जी, मुकाया, मैं गड्डी च सारा प्रोग्राम सुनिया। इट्स अ वेरी गुड प्रोग्राम, आज बड़ा मजा आया। बहुत हनिया ਵਧੀਆ। दा हो गया कि नहीं होया हाली? ਹਾਂਜੀ ਹਨੀਆਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ओ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। हाँ, ਹਾਂਜੀ I have to watch the repeat then क्योंकि ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਮਿਸ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਰਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ I dropped the kids ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਨੀ ਆ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੀਕ ਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਇਟਸ वेरी गुड, थैंक यू फरा जी। थैंक यू जी। या सो उज़मा क्या क्या आगे क्या हुक्म है? आगे ये है जी, मोहिनी आंटी हमें अगर सुना दें कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो मजा मोहिनी आए। जी चलो जी, शाम जो है ना वो मोहिनी आंटी शाम है धुआं धुआं। आप अनम्यूट कीजिए मोहिनी आंटी। मोहिनी जी अनम्यूट करके सुना दियो जी, कुछ तो लोग कहेंगे। इतनी अच्छी सारी कन्वर्सेशन हो रही है, डिस्कशन हो रही है, गाने को क्या करना? गाना फिर उसने कहा ना कि रूह का सुकून मिलना चाहिए, सो हमें बातें तो कानों से सुनी है। सोने पे सुहागा हो जाएगा मोहिनी जी। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। थैंक यू सो मच हफ्सा, ठीक है, Thanks, हफ्सा। थैंक यू। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू सो मच। और दूसरा मोनी जी ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਦਾਲ ਤੇ ਤੜਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। तड़का हुन गाने दा लगना चाहिए। ये गाना जो मैं गाने लगी हूँ ये आर्य समाज में किसी ने मुझे, वहाँ एक बंदा है वो के नज़में देते हैं, जैसे उज़मा भी लिखती है ना, तो थोड़ा बहुत अपनी आवाज निकाल देती हूँ, जो भी लाइनें लिखती हैं मैं उसकी तर्ज बना लेती हूँ। तो ये तो एक दो दफा इन्होंने छोटा छोटा सा लिखा है, बहुत बड़ी तो नज़म बनाई दी नहीं है, तो अगर देते तो शायद मैं उसका गाना बना लेती, मुझे अच्छा लगता है। तो आर्य समाज में एक बंदा जो कि लिखता है तो कहता है कि इसको गा के आप सुनाओ, वो मेरे को ही बोलते हैं कि आप सुनाओ। तो आज मैंने उसका ये गाना गाया। आर्य समाज का भी प्रोग्राम होता है 3 से 5:30 बजे तक, तो आज उसका लिखा हुआ है, गाना मेरा है, आवाज मेरी है। मैं पास में हारमोनियम रखती हूँ कि जैसे तानपुरा होता है ना, तानपुरा इतना कौन उठा के तो बैठ के गाना गाएगा, तो मैं इसको उसी 4 स्ट्रिंग के हिसाब से लगा देती हूँ ताकि आवाज में एवर रेडी, एवर रेडी। अपनी जिंदगी में तो यही रह गया, क्या करेंगे अकेले बैठ के, या बैठ के बातें कर लें, किसी से गप मार लें, तो वो सीखने वाली चीज तो अब पता नहीं कब कोई आएगा मेरे घर तो मेरे को सिखाएगा, आगे से पता नहीं कब आएगा, कोई आ जाएगा। थोड़ा बहुत तो आता है, बाकी थोड़ा सीखना है, ये फोन का नहीं आता अकेले बैठे समझ में। उज़मा हंस रही है, पिक्चर में ही हंस रही है, मगर वैसे भी हंसती है कि ये मोनी आंटी को समझ नहीं आनी। आ जाएगी, एक दिन आ जाएगी। खुदा तू ही बता क्या कुछ है, खुदा तू ही बता क्या कुछ था जो सहा नहीं, है खुदा तू ही बता क्या कुछ था जो सहा नहीं,
जाने क्या उसने सुन लिया, हमने तो कुछ कहा नहीं, जाने क्या उसने सुन लिया, हमने तो कुछ कहा नहीं, ऐ खुदा तू ही बता। साथ साथ रह के भी बढ़ती रहेगी दूरियां, साथ साथ रह के भी बढ़ती रहेगी दूरियां, सोचा नहीं था ख्वाब में ऐसी भी है सजा कहीं, ऐ खुदा तू ही बता, क्या कुछ था जो सहा नहीं, है खुदा तू ही बता। अहले गरूर के तख्त से कैसे करेंगे फैसला, अहले गरूर के तख्त से कैसे करेंगे फैसला, वे भी कहे खफा नहीं, हम भी कहे खता नहीं, वे भी कहे खता नहीं, हम भी कहे खफा नहीं, ऐ खुदा तू ही बता, क्या कुछ था जो सहा नहीं, ऐ खुदा तू ही बता। बेसबब जीते रहे मरते हुए तो उम्र भर, बेसबब जीते रहे मरते हुए तो उम्र हम, जिंदगी में बार बार आती है क्या कज़ा कहीं, ऐ खुदा तू ही बता, क्या कुछ था जो सहा नहीं, जाने क्या उसने सुन लिया, हमने तो कुछ कहा नहीं, ऐ खुदा तू ही बता। जिंदगी में बार बार आती है क्या क़ज़ा कहीं, हौसले बुलंद कर आसमां को नाप ले, ऐ खुदा तू ही बता, क्या कुछ था जो सहा नहीं, जाने क्या उसने सुन लिया, हमने तो कुछ कहा नहीं, ऐ खुदा तू ही बता। हौसले बुलंद कर आसमां को नाप ले, हौसले बुलंद कर आसमां को नाप ले, पर भी है परवाज़ भी है सफर का मजा यही, है खुदा तू ही बता। उम्मीद से लबरेज हम आए तेरी दहलीज पर, उम्मीद से लबरेज हम आए तेरी दहलीज पर, कबूल हो इबादतें आखिरी सदा यही, है खुदा तू ही बता, क्या कुछ था जो सहा नहीं, जाने क्या उसने सुन लिया, हमने तो कुछ कहा नहीं, है खुदा तू ही बता, है खुदा तू ही बता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ये किसी Very ने nice, ये किसी very ने nice. मैंने डिस्टर्ब तो नहीं था किया, मेरा म्यूट नहीं था, सॉरी। नहीं डिस्टर्ब नहीं हुआ बिल्कुल भी। आवाज आई है इसमें ठीक तरह से? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, अच्छा, बहुत अच्छी। मोहिनी आंटी किन्होंने लिखा था? ये इधर है सुरेंद्र शर्मा।
उनको कहिएगा बहुत अच्छा लिखा और उससे कहीं ज्यादा अच्छा आपने गाया, आपने गाया। जान डाल दी। जान, और बहुत ही वो अच्छा। ट्यून बहुत अच्छी बनाई है आपने। जी तो उन्होंने आगे भी एक दिया था, उसको भी गाया था, तो Thank you. उसने उसकी रिकॉर्डिंग करके अपने इंग्लैंड भेज दी, बोलते मैं रिकॉर्डिंग करके अपनी सिस्टर इन लॉ को भेज दी है। अच्छा, तो मोहिनी आंटी, अक्टूबर से ना हमारा थोड़ा चेंज हो जाएगा ये प्रोग्राम। हाँ जी, अभी तो हमारे डिफरेंट प्रेजेंटर्स आते हैं, हम कोई ऐसी बात करते हैं, इंटरैक्टिव हैं, उसमें कुछ ट्रेनिंग्स हैं हमारी। वो अच्छा 6 बजे से स्टार्ट हुआ करेगा अक्टूबर से 6 to 8:30, और वो ट्रेनिंग्स होंगी ज्यादा। तो मुझे पता है आप तो अटेंड करेंगी, आप हमारी हर चीज एंजॉय करती हैं। उसके बाद में अगर हिम्मत होगी तो फिर हम आपके गाने का रख लेंगे, क्योंकि वो ट्रेनिंग्स बड़ी वो हो जाती है ना, थोड़ी हैवी हो जाती हैं, तो वो हम देख लेंगे। तो टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगे, प्लीज सब नोट कर लें, हम लोगों के फ्लायर्स भी आ जाएंगे। सितंबर के 6 बाद की बात करते हो? अक्टूबर में, अक्टूबर से स्टार्ट होगा। अक्टूबर से स्टार्ट हो, ये तो सितंबर है ना, ये महीना तो सितंबर का है ना? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, फिर से बोलो कि अक्टूबर में क्या शुरू करना? ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएंगी 6 to 8। ये इंटरैक्टिव, क्या चीज की ट्रेनिंग? वो फ्लायर्स मिल जाएंगे हमें। ये जो सेशन है हमारे, जो हम अब कर रहे हैं, हाँ जी, ये इंटरैक्टिव है। लाइक हम बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, हाँ। लेकिन वो उसमें सिर्फ ट्रेनिंग्स होंगी 6 to 8। तो ट्रेनिंग में मुझे क्या सीखना है? वो बताएंगे, उज़मा बताएंगे। उज़मा एक्चुअली उसके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई है, तो उज़मा फिर दोबारा हम जुड़ेंगी तो फिर वो बताएंगी कि क्या करना है, किस किस चीज की ट्रेनिंग है, वो बताएंगे। मैं इस उम्र में ट्रेनिंग लेके क्या करूंगी? वो ट्रेनिंग ऐसी ही होंगी जैसे ये मेंटल हेल्थ की ट्रेनिंग है, अच्छा, ऐसी ही होंगी, लेकिन ये है कि डिस्कशंस होंगी, डिफरेंट टॉपिक्स पर हाँ डिस्कशन हाँ होंगी। जी, हाँ जी, They'll talk about it के कैसे डिमेंशिया का कैसे हाँ जी, हाँ जी, ट्रीटमेंट करना है, किसी को दर्द हैं उसको क्या करना है, दिस एंड दैट काइंड ऑफ थिंग। यस यस, आई थिंक सो। आ गई उज़मा बता देंगी। उज़मा, मोहिनी जी पूछ रही है कि किस किस तरह की ट्रेनिंग्स होंगी। मोहिनी आंटी, उसकी डिटेल पता चल जाएगी, फ्लायर्स पे होगी। बहुत से हमारे मेंबर्स ने कहा था कि ये वाली ट्रेनिंग्स या वर्कशॉप्स चाह रहे हैं वो लोग। डिफरेंट टॉपिक्स पे होंगे, जैसे मेंटल हेल्थ पे होगा, कम्युनिकेशन पे होगा। वही मैंने हमें यही बता के है जी। तो सॉरी, वो मेरा इंटरनेट कुछ लैग कर रहा है, लगता है अभी फिर उड़ जाएगा। चले फिर सारे, आई थिंक डिनर टाइम इज। बिल्कुल जी, बिल्कुल। थैंक यू सो मच वंस अगेन परम, करमजीत जी और सुरजीत जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से कंडक्ट किया, बहुत अच्छा लगा। और मोहिनी आंटी एज यूजुअल आपके गाने का शुक्रिया। पर्रा और गुलनाज ने और हफ्जा ने ज्वाइन किया अपना टाइम निकाल के। आजकल स्कूल शुरू हो गए, मुझे पता है थोड़ा सा वो चैलेंजिंग है, तो करमजीत प्लीज आती रहिएगा, और परम आप भी, हम तो यही होते हैं। हाँ जी मैम, श्योर। परम बहुत अच्छा, बहुत मैं अच्छा ये कहती हूँ कि आप ये सारी वो जो ट्रेनिंग जो करेंगे, तो मुझे जो ट्रेनिंग चाहिए वो कौन आके दे सकता है? हमारे पास तो एक ही बंदा जो आपको आके दे सकता है ना। कौन है? वो तो बहुत दूर है। तो बस वो आ जाएगा, जब टाइम आएगा वो आ जाएगा ना, वो आएगा। आप गाना गाएं, आएगा आने वाला, तो वो आ जाएगा। गाना गा दिया, वो आ जाएगा। ठीक है, ओके जी, बहुत थैंक यू सो मच, बहुत चंगा लगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।